Good morning, students. In this video, we will see the fifth lesson from geography, major domains of the earth. And students, you have to open your page number 147 while watching this video. Before this lesson, we have to understand the meaning of some words. First word is here, atmosphere. What is meant by atmosphere? The layer of air enveloping the अर्थ, पूरे अर्थ को जो एयर की लेयर सराउंडेड है उसे हम बोलेंगे एटमॉस्फेयर. बायोस्फीयर, व्हाट इज मीन बाय बायोस्फीयर? द जोन ऑफ द अर्थ कंटेनिंग लाइफ. जिस जोन में हमें लाइफ मिलता है उसे हम बोलेंगे बायोस्फीयर. कॉन्टिनेंट्स, कॉन्टिनेंट्स मीन्स लार्ज लैंड मासेस ऑन द अर्थ. जो बहुत बड़े बड़े लैंड मासेस है उसे हम बोलेंगे continents. How many continents here? On our earth there are 7 continents. Hydrosphere, the total water bodies of the earth. हाइड्रोस्फीयर किसे बोलेंगे हम? जो छोटी वाटर बॉडी से लेके बहुत बड़ी वाटर बॉडीज है, जितना भी वाटर है अपने अर्थ पे उसे हम बोलेंगे हाइड्रोस्फीयर. Isthmus means a thin land mass and separates two water bodies. And what is this isthmus? ये एक छोटा सा लैंड मास रहता है और दो वाटर बॉडीज से ये सेपरेट हुआ रहता है. लिथोस्फीयर, व्हाट इज मीन बाय लिथोस्फीयर? द आउटर मोस्ट सॉलिड लेयर ऑफ द अर्थ मेड अप ऑफ रॉक्स एंड सॉइल. और जो अर्थ की ऊपर की लेयर है, सॉइल लेयर है, और वो रॉक और सॉइल से बनी हुई है, उसे हम बोलेंगे लिथोस्फीयर मीन्स लैंड. ओके. Oceans, oceans means large masses of water on earth surface. You know oceans, बहुत बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज जो है अपने अर्थ पे उसे हम बोलेंगे oceans. How many oceans there are on our earth? There are 5 oceans. Okay. Strait, strait means a thin water body that separates two large land masses. और ये छोटी सी वाटर बॉडी रहती है और वो लार्ज लैंड मासेस से सेपरेट की रहती है, सेपरेट हुई रहती है. ओके. नाउ कम टू द लेसन. वी नो दैट द अर्थ इज द ओनली प्लैनेट इन द होल सोलर सिस्टम ऑन विच लाइफ एग्जिस्ट. एंड हमें ये पता है कि अपनी जो अर्थ है ये ऐसा एक ही प्लैनेट है पूरे सोलर सिस्टम में कि यहाँ पे लाइफ मिलती है. ओके. The favorable conditions found on earth make life possible on it. And why there is a life on the earth? Because of the favorable condition to life. That's why there is a life. This is mainly due to the presence of land, water, air on the earth. And why this favorable condition is on the earth for life? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लैंड, क्योंकि अर्थ पे लैंड है, वाटर है और एयर है. ओके. द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉम्प्लेक्स जोन इन विच 3 मेन कॉम्पोनेंट्स ऑफ द एनवायरमेंट, लैंड, वाटर एंड एयर मीट ओवरलैप एंड इंटरैक्ट. एंड जो अर्थ सरफेस है देयर इज दैट इज कॉम्प्लेक्स जोन. एंड यहाँ पे 3 मेन कॉम्पोनेंट्स है environment के, which are these 3 main components: land, water and air. And these 3 main components meet, overlap and interact. Now the lithosphere is the solid portion of the earth on when we live. And lithosphere किसे बोलेंगे हम? land, that is a solid portion of earth जहाँ पे हम रह रहे हैं. The atmosphere is the gaseous cover that surrounds the earth, where oxygen, nitrogen, carbon dioxide and other gases are found. And atmosphere किसे बोलते हैं हम? Air. Okay. And what is included in this atmosphere? There are different gases in atmosphere. ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड बहुत कुछ और भी गैसेस वहाँ पे हमें मिलते हैं. दैट इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर. दिस एटमॉस्फेयर सराउंड्स द अर्थ. द हाइड्रोस्फीयर इज अ लार्ज एरिया covered with water in liquid, solid and gaseous states. For example, ice, water and water vapors. And what is a hydrosphere? हाइड्रोस्फीयर किसे बोलेंगे हम? ये जो भी वाटर बॉडीज, जो भी वाटर है पूरे अर्थ पे
अर्थ को कवर किया हुआ जो भी वाटर एरिया है लिक्विड, सॉलिड एंड गैसियस स्टेट में, उसे बोलेंगे हम हाइड्रोस्फीयर. फॉर एग्जांपल आइस, आइस एन ए सॉलिड स्टेट, वाटर मीन्स इन लिक्विड एंड वाटर वेपर्स मीन्स इन गैसियस स्टेट. ओके, नाउ द narrow zone between land, water and air where all forms of life exist is called the biosphere. And what is mean by biosphere? What is mean by biosphere? That is one narrow zone between the land, water and air and where all forms of life exist. यहाँ पे अलग अलग लाइफ हमें मिलेंगे, वो जोन को हम बोलेंगे biosphere. Now next topic is here lithosphere. We have to study about lithosphere. What is the lithosphere? The lithosphere consists of various rocks and minerals. And किससे बना हुआ है ये lithosphere? First you have to understand the concept of lithosphere. Lithosphere means land, जहाँ पे हम रह रहे हैं. And how form this land lithosphere? It consists of various rocks and minerals. यहाँ पे बहुत सारे rocks है और minerals है. And the word lithos in Greek means rock. And lithos word कहाँ से है? Greek से. And उसका meaning क्या है lithos का? Rock. It covers 29% of Earth's surface. और कितने परसेंट अर्थ सरफेस कवर्ड किया हुआ है? लैंड कितनी परसेंट लैंड है अपने अर्थ पे? 29%. द लिथोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ लैंड मासेस. द लार्ज लैंड मासेस आर नोन एज अ कॉन्टिनेंट्स. और जो बहुत बड़े बड़े लैंड मासेस हैं उसे हम कॉन्टिनेंट्स कहेंगे. विच आर सराउंडेड बाय लार्ज वाटर बॉडीज कॉल्ड ओशंस. और जो एरिया बहुत बड़े बड़े वाटर बॉडीज ने कवर किया हुआ है वो लार्ज वाटर बॉडीज को हम बोलेंगे ओशंस. देयर आर 7 कॉन्टिनेंट ऑन द अर्थ. हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स हियर? There are 7 continents. In the decreasing order of their size they are, and there is a name. There are name of these continents, and how this order? Decreasing order. यानी साइज के हिसाब से ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पे दिए हुए हैं. फर्स्ट विच इज़ द फर्स्ट कॉन्टिनेंट? एशिया. एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट होने की वजह से फर्स्ट दिया हुआ है. ओके, देन अफ्रीका, देन नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया. Most of the land masses are found in the northern hemisphere while most of the southern hemisphere is covered by water. और यहाँ पे ये जो कॉन्टिनेंट है ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ पे मिलेंगे हमें? land masses in the northern hemisphere. You know there are 2 hemisphere, northern hemisphere and southern hemisphere on the earth. हमने ये पढ़ा है पहले लेसन में. एंड जो भी ज़्यादा से ज़्यादा लैंड मासेस दिए हुए हैं, जो कॉन्टिनेंट दिए हुए हैं, ये कहाँ पे मिलते हैं? इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. एंड सदर्न हेमिस्फीयर में हमें क्या मिलेगा? वाटर मीन्स ओशंस. देयर इज़ अ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग बींग्स इन कॉन्टिनेंट्स. और यहाँ पे हमें ग्रेट डाइवर्सिटी मिलती है जो भी लाइफ है इसमें. डाइवर्सिटी मीन्स डिफरेंट लाइफ बोलेंगे हम इसे, मीन्स विविधता इन हिंदी. अलग अलग तरीके की लाइफ हमें यहाँ पे मिलेगी. प्लांट्स डिफरेंट मिलेंगे, एनिमल्स डिफरेंट मिलेंगे, थिंग्स डिफरेंट मिलेगी, लैंड मासेस डिफरेंट मिलेंगे. ओके, मेनी नेशंस आर फाउंड इन दिस कॉन्टिनेंट्स and people speak different languages, and there are many nations in the large continents. People speak different languages, और जो लोग रहते हैं वो अलग अलग लैंग्वेजेस यहाँ पे बोलते हैं. They wear different types of clothes and follow various religions and customs. और जो भी लोग यहाँ पे रहते हैं वो अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं, अलग अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं और अलग अलग रिलीजन्स और कस्टम्स को फॉलो करते हैं. दैट इज़ कॉल्ड द डाइवर्सिटी. से ही हम बोलेंगे डाइवर्सिटी. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज हियर
Asia. Open your page number 148. It is the biggest continent in the world, and Asia is the biggest continent. सबसे बड़ा continent कौन सा है? एशिया. It has the largest area and the highest population. यहाँ ये एरिया के हिसाब से बहुत ही लार्ज है, बड़ा है. एंड हाईएस्ट पॉपुलेशन इज ऑल्सो इन एशिया. सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ पे मिलेगा हमें? इन विच कॉन्टिनेंट? एशिया कॉन्टिनेंट. एंड सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है? एशिया. It lies between 80 degree north to 10 degrees south latitudes and between 26 degree east to 170 degree west longitudes approximately. और कैसे एक्सटेंड है ये एशिया? अकॉर्डिंग टू लैटिट्यूड 80 डिग्री नॉर्थ टू 10 डिग्री साउथ एंड लॉन्गिट्यूड्स पे कैसे है? 26 डिग्री ईस्ट टू 170 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड्स. इट्स अ मेजर पार्ट लाइज इन द नदर्न हेमिस्फीयर. और इसका जो भी पार्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट कहाँ पे है? इन नदर्न हेमिस्फीयर. एशिया कवर्स ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द अर्थ. और पूरे एरिया अर्थ की जितनी है उसमें से 1/3 कॉन्टिनेंट कौन सा है? एशिया. 1/3 एरिया किसने एग्जिस्ट किया हुआ है? एशिया ने. द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू इट. और यहाँ से कौन सा लैटिट्यूड्स पास हुआ है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. It is separated from Europe by the Ural Mountains, the Black Sea and the Caspian Sea in the west. And ये जो एशिया है इसको यूरोप से सेपरेट कौन से माउंटेन्स ने किया हुआ है? अरल माउंटेन्स. द ब्लैक सी की वजह से भी ये यूरोप से सेपरेट हुआ है. एंड द कैस्पियन सी इन द वेस्ट में कैस्पियन सी ने इसे सेपरेट किया हुआ है यूरोप से. द बेरिंग स्ट्रेट separates Asia from North America and the Suez Canal separates it from the Africa. Asia is surrounded by Pacific Ocean in the east, Arctic Ocean in the north and Indian Ocean in the south. And ये जो एशिया है इसके ईस्ट में पैसिफिक ओशन है, आर्टिक ओशन नॉर्थ में है एंड इंडियन ओशन साउथ में है. डिड यू अंडरस्टैंड? जो एशिया कॉन्टिनेंट है और इंडिया इज सिचुएटेड इन द एशिया. ओके. एंड ये जो एशिया है इसके ईस्ट में कौन सा ओशन है? पैसिफिक ओशन. इसके नॉर्थ में आर्टिक ओशन एंड इसके साउथ में इंडियन ओशन. The combined landmass of Europe and Asia is called the Eurasia. और यूरोप और एशिया दोनों मिलके कौन सा लैंडमास बना रहे हैं? यहाँ पे क्या कहा जाता है? दोनों मिलके जो कॉन्टिनेंट बनता है, लैंडमास बनता है, उसे यूरेशिया कहा जाता है. Asia has high mountains, deep valleys, large and fertile plains and vast plateaus. And ये जो एशिया कॉन्टिनेंट है यहाँ पे हमें माउंटेन्स मिलेंगे, डीप वैलीज मिलेंगी, लार्ज एंड फर्टाइल प्लेन्स मिलेंगे एंड वेस्ट प्लेटूज मिलेंगे. प्लेन एरिया सभी को पता है, प्लेटूज किसे कहा जाता है ये भी पता होगा. एंड डीप वैलीज एंड माउंटेन्स. ओके. हाई माउंटेन्स. The highest mountain range of the Himalayas and the highest plateau of Tibet are found in Asia. और एशिया में highest mountains कौन से कहे गए हैं? Himalayas. And where are these Himalayas? In our India. Okay. In the north side of our India there are Himalayas, and highest plateaus of Tibet are also found in Asia. और ये तिब्बत प्लेटूज भी अपने एशिया में ही मिलते हैं. The highest mountain peak, the Mount Everest, and the lowest part of the earth, the Dead Sea,
are its parts. And is in Asia continent there is a highest mountain peak. सबसे ऊंचा mountain peak कहाँ पे मिलेगा हमें? एशिया में. which is this Mount Everest. ये ध्यान में रखना है सभी को. What is the height of this Mount Everest? 8,848 meter. And which is the lowest part of the earth? lowest part कौन सा है? On the land पे है ये. The Dead Sea. How many meter below it? द सी लेवल, जो सी लेवल लैंड लेवल रहती है उससे कितने डीप है ये? 418 मीटर बिलो. ओके. डेड सी एंड माउंट एवरेस्ट आपको ध्यान रखना है. विच इज़ द हाइएस्ट माउंटेन पीक in Asia continent, that is a Mount Everest. And how many meter height of this Mount Everest? 8,848 meter. And which is the lowest part of the earth on the land? That is a Dead Sea. And how many meter deep this Dead Sea from the sea level? 418 meter. Okay, below the sea level. Okay, that is why Asia is also known as the continent of extremes. और इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? continent of extremes. Asia is rich in a diverse races, cultures and languages. And यहाँ पे जो एशिया कॉन्टिनेंट है यहाँ पे हमें अलग अलग कास्ट मिलेगी, अलग अलग कल्चर्स मिलेंगे एंड अलग अलग लैंग्वेजेस भी मिलती हैं. मेनी ऑफ द वर्ल्ड्स मेजर रिलीजन्स केम आउट ऑफ एशिया इंक्लूडिंग जुडिज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, Zoroastrianism, Shinto, Sikhism, Hinduism, Jainism and Buddhism. And there are different religions also in this Asia continent. Abundant natural resources like petroleum are found in Asia. और जो नेचुरल रिसोर्सेस है वो भी बहुत सारे अपने एशिया कॉन्टिनेंट में ही मिलते हैं. जैसे पेट्रोलियम भी हमारे एशिया कॉन्टिनेंट में ही मिलते हैं. हम हमारे क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अपना इंडिया यहाँ पे है एशिया कॉन्टिनेंट में. द सदर्न प्लेट्यू ऑफ एशिया आर मेड अप ऑफ हार्ड रॉक्स which the Arabian plateau is dry desert. 1 minute. एंड दिस सदर्न प्लेट्यू, जो एशिया के सदर्न प्लेट्यूज है वो किससे बने हुए हैं? हार्ड रॉक्स. एंड द अरेबियन प्लेट्यूज इज ड्राई डेजर्ट. और जो अरेबियन प्लेट्यूज है वहाँ पे क्या है? डेजर्ट. डेजर्ट मीन्स रेगिस्तान. एशिया हैज़ द टू मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, चाइना एंड इंडिया. और एशिया में पॉपुलर कंट्रीज कौन सी है? चाइना एंड इंडिया. Okay, or India is situated in the Asia continent. Now next continent is here Africa. We have to see about this Africa. Africa is the second largest continent of the world. It extends from 37 degree north to 35 degrees south latitudes and 18 degree west to 51 degree east longitudes. लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन कैसे है अफ्रीका का? कितना है? 37 डिग्री नॉर्थ टू 35 डिग्री साउथ. एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन 18 डिग्री वेस्ट टू 51 डिग्री ईस्ट. एंड ये जो अफ्रीका है ये सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है पूरे वर्ल्ड में से. फर्स्ट लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा पढ़ा हमने? एशिया. एंड सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट अफ्रीका. Its north-south extent is nearly 8,000 km and the east-west one is about 7,200 km. और इनका जो नॉर्थ साउथ एक्सटेंट है कितने किलोमीटर है? ये नॉर्थ साउथ
8,000 किलोमीटर एंड ईस्ट वेस्ट कितने किलोमीटर है 7,200 किलोमीटर. अफ्रीका इज सराउंडेड बाय द इंडियन ओशन इन ईस्ट, अटलांटिक ओशन इन द वेस्ट, मेडिटेरियन सी इन द नॉर्थ एंड द रेड सी इन द नॉर्थ ईस्ट. 1 मिनट, ये चल रहा है हमारा. हाँ, अफ्रीका को ईस्ट में कौन से ओशन से अफ्रीका सराउंडेड है? ईस्ट में इंडियन ओशन से, ओके, एंड वेस्ट में अटलांटिक ओशन ने सराउंड किया हुआ है अफ्रीका को, एंड मेडिटेरियन सी इन द नॉर्थ. नॉर्थ में कौन सा सी है? मेडिटेरियन सी, एंड द रेड सी इन द नॉर्थ ईस्ट, और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अफ्रीका के रेड सी मिलेगा. अफ्रीका इज द ओनली कॉन्टिनेंट थ्रू विच ऑल 3 मेजर पैरेलल्स, दैट इज इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन्स पास. और अफ्रीका ऐसा एक कॉन्टिनेंट है कि यहाँ पे जो 3 मेजर पैरेलल्स है, मीन्स लैटिट्यूड्स है, वो पैरेलल्स है, ओके. विच आर दीज? इक्वेटर यहाँ से गया हुआ है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन्स पास हुए हैं. The equator crosses through the middle of the continent and the tropics of Cancer and Capricorn cut through the north and south of the continent. And जो equator है, you know equator, what is equator? Equator is the main latitudes on the earth. and कहाँ से गया हुआ है ये इक्वेटर? अफ्रीका से पास हुआ है और ये मिडल साइड से गया हुआ है. and tropic of cancer and capricorns cut through the north and south. और नॉर्थ और साउथ में से कौन से लैटिट्यूड्स पास हुए हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द कैप्रिकॉन्स, ओके. नाउ द क्लाइमेट ऑफ अफ्रीका इज़ वेरी हॉट. और क्लाइमेट कैसे है अफ्रीका का? बहुत ही हॉट है. 1 मिनट. Climate is very hot here. A large part of Africa lies in the northern hemisphere. और अफ्रीका का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा कहाँ पे है? ज़्यादा से ज़्यादा अफ्रीका कौन से हेमिस्फीयर में है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. अफ्रीका हैज़ अ ह्यूज प्लेट्यू सरफेस. और अफ्रीका में बहुत ज़्यादा प्लेट्यूज हमें मिलेंगे. The Congo Basin is an important low-lying area. यहाँ पे low-lying area कौन सा दिया हुआ है? Congo Basin. Mount Kenya and the Mount Kilimanjaro are volcanic mountains, or these 2 mountains are volcanic mountains. The world's largest desert, Sahara, is located in Africa. और जो पूरे वर्ल्ड में बहुत बड़ा डेजर्ट है, सहारा डेजर्ट, ये कहाँ पे लोकेटेड है? इन अफ्रीका. द अदर मेन डेजर्ट्स आर कलाहारी एंड नमीद. और दूसरे 2 डेजर्ट्स भी कौन से हैं ये? कलाहारी एंड द नामिद. द लॉन्गेस्ट रिवर नाइल फ्लोज इन इट. और सबसे लॉन्ग रिवर कौन सी है? विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर? नाइल. एंड ये नाइल रिवर भी यहाँ पे फ्लो होती है. अफ्रीका इज सेपरेटेड फ्रॉम एशिया बाय द स्यूज कैनल. और अफ्रीका एशिया से किस वजह से सेपरेट हुआ है? बिकॉज ऑफ द स्यूज कैनल. Here, this is the picture of the largest desert in the world, Sahara Desert. This is the picture of Sahara Desert. Okay. Now, the Africa is also known as the Great Safari. और अफ्रीका को Great Safari भी कहा जाता है. People visit Africa to see wild animals roaming in their natural surroundings called national parks. और लोग अफ्रीका में वाइल्ड एनिमल्स देखने के लिए आते हैं. एंड उसे क्या कहा गया है? जहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स घूमते हैं उसे क्या कहेंगे? नेशनल पार्क. ओके.
and there is a picture of this North America. This is the map of Africa. 1 minute, wait. This is the map of the Africa political division. You have to observe this map also. And there is a picture of Dead Sea Asia. This is the Dead Sea of Asia. Then there is one map is here, political map of Asia. Okay. This is the Asia continent. This is the largest continent. Our India is also situated in this Asia continent. This is the China. बाकी और भी कुछ कंट्रीज यहाँ पे है, बट दीज टू मेन कंट्रीज आर सिचुएटेड इन एशिया कॉन्टिनेंट एंड these countries are the popular countries among the world. Now turn your page, page number 150. You have to open your page number 150 here. Earliest Africa was called the dark continent by the Europeans because they knew little about it. और जो earliest Africa था, इसे क्या कहा जाता था? Dark continent. Why? क्योंकि जो यूरोपियंस थे उन्हें इनके बारे में बहुत ही कम जानकारी थी. Now next continent is here, North America. इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट. अब ये जो नॉर्थ अमेरिका है ये थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है. इट लाइज होलली इन द नदर्न हेमिस्फीयर. और ये पूरे टोटली कहाँ पे फैला हुआ है? नदर्न हेमिस्फीयर. एंड स्टूडेंट्स यू नो हेमिस्फीयर और अर्थ डिवाइडेड बाय इक्वेटर इन two separate parts. Okay, and these two parts are called the hemisphere, and there are two hemisphere on our earth, northern hemisphere and southern hemisphere. जो north का part है उसे northern hemisphere बोलेंगे and जो south का हिस्सा है उसे हम southern hemisphere बोलेंगे. और ये जो north अमेरिका है कहाँ पे है, कहाँ पे एक्सटेंडेड है ये? इन नदर्न हेमिस्फीयर. इट इज़ सिचुएटेड बिटवीन 7 डिग्री नॉर्थ टू 83 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड्स एंड 53 डिग्री वेस्ट टू 180 डिग्री वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड्स. और कहाँ पे सिचुएटेड है ये? लैटिट्यूड्स एक्सटेंशन क्या है इसका? लैटिट्यूशनल एक्सटेंशन 7 डिग्री नॉर्थ टू 83 डिग्री नॉर्थ एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन 53 डिग्री वेस्ट टू 180 डिग्री वेस्ट. इट इज़ सराउंडेड बाय द पैसिफिक ओशन इन द वेस्ट. और ये जो नॉर्थ अमेरिका है इसके वेस्ट में कौन सा ओशन है? पैसिफिक ओशन. ओके, हियर. देन आर्टिक इन द नॉर्थ एंड द अटलांटिक ओशन इन द ईस्ट. और ये जो आर्टिक ओशन है ये कौन से साइड में है? नॉर्थ अमेरिका के नॉर्थ में. एंड अटलांटिक ओशन ईस्ट में. अटलांटिक ओशन कहाँ पे है? नॉर्थ अमेरिका के ईस्ट में. इट इज़ लिंक्ड टू साउथ अमेरिका थ्रू द इस्थमस ऑफ पनामा. It has an area of about 24,709,000 square kilometer. This is the area of this North America. It's a north-south extent and north-south में कितना फैला हुआ है ये नॉर्थ अमेरिका? 7,650 kilometer. And the east-west extension of this North America is here 4,800 kilometer. नॉर्थ अमेरिका हैज़ 23 कंट्रीज़. और ये जो नॉर्थ अमेरिका है यहाँ पे कितने कंट्रीज़ है? 23 कंट्रीज़. 2 ऑफ इट्स कंट्रीज़ कनाडा एंड द USA आर ऑल्सो नोन एज एंग्लो अमेरिका. और ये जो 2 कंट्रीज़ है फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका, कनाडा एंड USA, दीज आर द एंग्लो अमेरिका. क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा एग्रीकल्चर होता है, खेती होती है. They form 75% of the total area of North America. और ये जो USA एंड कनाडा है इन्होंने कितना एरिया लिया हुआ है? टोटल एरिया नॉर्थ अमेरिका के टोटल एरिया में से 75%.
And according to geologist, Canada is one of the oldest region in the world. And जो geologist है वो क्या कह रहे हैं कि कनाडा सबसे ओल्डेस्ट रीजन है पूरे वर्ल्ड में. ओके, दिस इज द ओल्डेस्ट रीजन. सम ऑफ नॉर्थ अमेरिकाज फेमस सिटीज आर मैक्सिको सिटी, न्यूयॉर्क, लॉस एंजल्स, Chicago, Toronto, and the Washington DC. These are the name of the famous cities from North Americas. The northern region of North America remains snow covered nearly throughout the year. और जो नॉर्थ एरिया है नॉर्थ अमेरिका का वो पूरे साल भर वहाँ पे बर्फ़ रहता है, आइस रहता है. There are large extensive plains of tall grass between the Rocky Mountains and the Appalachians, known as prairies. And there are large area of grassland, and these grasslands are known as prairies. बहुत बड़ा एरिया है उस grassland. ओके, दिस उसे क्या कहेंगे हम, grassland को prairies. These are very suitable for growing crops. और ये जो एरिया है ग्रासलैंड, ये किसके लिए सूटेबल है, ग्रोइंग क्रॉप्स ग्रो करने के लिए. रेयरिंग कैटल्स, और जो भी कैटल्स रेयर किए जाते हैं, यू नो रेयर यानी चराना. कैटल्स मीन्स एनिमल्स, जो एनिमल्स घास खाते हैं उसे हम बोलेंगे कैटल्स. एंड what is the use of these cattles? For meat, milk and other animals products. कुछ और भी एनिमल प्रोडक्ट्स वहाँ पे मिलते हैं. मिल्क भी मिलता है कैटल से और मीट भी मिलता है. ओके, there are 4 great lakes between Canada and the USA. and ग्रेट लेक्स बताए हैं यहाँ पे, कहाँ पे, बिटवीन कनाडा एंड द USA. St. Lawrence, Mississippi and the Missouri are the important rivers of North America. And there are important rivers in North America, and which are these? St. Lawrence, Mississippi and the Missouri. The Colorado River, while flowing through soft rocks, cut them out to form the Grand Canyon. और ये जो कोलोराडो रिवर है, ये अपने जब फ्लो होती है तो क्या होता है, वहाँ पे जो भी सॉफ्ट रॉक्स है वो कट होते हैं. एंड ये सॉफ्ट रॉक्स कट होने की वजह से क्या फॉर्म हुआ है, ग्रैंड कैनियन. देयर इज द पिक्चर ऑफ ग्रैंड कैनियन. दिस इज द पिक्चर ऑफ ग्रैंड कैनियन. ओके, the 5 great lakes and the river St. Lawrence together form the greatest inland waterway in the world. The Ring of Fire is the volcanic mountain range that is along the basin of the Pacific Ocean. And what is this Ring of Fire? This is the volcanic mountain range, यानी mountains है ये. रेंज मीन्स साइकिल, माउंटेन्स की ये एक रेंज है. Where is this Ring of Fire? In North America. The group of Caribbean island of Gulf of Mexico are known as the West Indies, and North America has a large variety of natural resources. और ये जो नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग हमें नेचुरल रिसोर्सेस मिलेंगे. Many parts of the North America are rich in the minerals like iron, nickel, zinc, copper, gold, lead and uranium. And North America में हमें बहुत सारे minerals मिलते हैं. कौन से minerals यहाँ पे मिल रहे हैं? Iron, nickel, zinc, copper, gold, lead and uranium. Now next continent is here, South America. We have to study about this South America. It is the 4th largest continent. It lies between 13 degree north and 55 degree south latitudes, and between 35 degree west to 81 degree west longitudes. And what is the latitudinal extension of this South America? कौन से latitudes के बीच में ये मिल रहा है हमें साउथ अमेरिका? 13 degree north and 55 degree south latitudes.
and longitudes 35 degree west to 81 degree west longitudes. Okay, it has an area of about 17 million 8 lakh 40,000 kilometers square, with the east west extent of about 4,800 kilometer. और ईस्ट वेस्ट एक्सटेंड कितना है इसका साउथ अमेरिका का 4,800 किलोमीटर. एंड द नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन कितना मिलेगा 7,650 किलोमीटर. इट लाइज मोस्टली इन द सदर्न हेमिस्फीयर. और ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ पे है ये साउथ अमेरिका इन सदर्न हेमिस्फीयर, वाइल अ स्मॉल पोर्शन ऑफ इट लाइज इन द नदर्न हेमिस्फीयर. और छोटा सा हिस्सा इसका नदर्न हेमिस्फीयर में मिलता है. इट इज़ सराउंडेड बाय द अटलांटिक ओशन इन द ईस्ट. ईस्ट में साउथ अमेरिका के ईस्ट में अटलांटिक ओशन है. पैसिफिक ओशन कहाँ पे है वेस्ट में. एंड कैरिबियन सी इन द नॉर्थ, और इसके नॉर्थ में कैरिबियन सी है. देर आर 12 इंडिपेंडेंट कंट्रीज इन द साउथ अमेरिका. कितनी इंडिपेंडेंट कंट्रीज हैं यहाँ पे 12. दीज आर अर्जेंटीना, बोलिविया, ब्राज़ील, चिले, कोलंबिया, इक्वाडोर, गायना, पैरेंगे, पेरू, सेरेनेम, अर्गे and the Venezuela. These are the name of the countries from South America. The Andes is the longest continental mountain range in the world. And कौन सी माउंटेन रेंज मिल रही है यहाँ पे एंडेस. दिस इज़ द लॉन्गेस्ट कॉन्टिनेंटल माउंटेन्स रेंज. पूरे वर्ल्ड में ये लॉन्ग रेंज है माउंटेन की. इट इज़ अबाउट 7,000 किलोमीटर लॉन्ग एंड 200 किलोमीटर वाइड. और ये कितनी लॉन्ग है 7,000 किलोमीटर लॉन्ग एंड 200 किलोमीटर वाइड. इट एक्सटेंड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ थ्रू 7 साउथ अमेरिकन कंट्रीज़. और ये नॉर्थ से लेके साउथ तक फैली हुई है. और कितनी कंट्रीज़ में ये है, ये जो रेंज है माउंटेन्स रेंज 7 साउथ अमेरिकन कंट्रीज. ओके, माउंट एकोनकाग्युआ इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ द एंडेस माउंटेन रेंज. और ये जो एंडेस माउंटेन्स रेंज है यहाँ पे हाईएस्ट पीक कौन सा है माउंट एकोनकाग्युआ. ओके, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ दिस माउंटेन 6,960 मीटर. जैसे हमारे यहाँ पे हिमालय है, हिमालय माउंट, वैसे यहाँ पे कौन से माउंटेन्स मिल रहे हैं हमें माउंट एकोनकाग्युआ. नाउ दिस इज द मैप ऑफ साउथ अमेरिका पॉलिटिकल डिवीजन. ओके, you have to observe this map from your textbook 151 page number. There are 2 MCQs. We have to solve these MCQs here. First, the large extensive plains of tall grass between the Rocky Mountains and the Appalachians are known as A option is the answer here, prairies. Okay. Now second, the longest continental mountain range is the world. Which is the longest continental mountain range? There are 3 options: the Rockies, the Andes, the Himalayas. B option is the answer here, Andes. Now today's topic is completed here. You have to read the lessons and you have to solve the MCQs from assignment. I will send it after this video. Have a good day.